children, how are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is Pioneer Freedom Fighters. Freedom is a right given to each and every citizen of India. It implies freedom of speech, religion, action, etc. to people. After a long struggle against Britishers who came to India in 1605 AD, India got freedom on August 15, 1947. Many people who sacrificed their lives to attain freedom are called freedom fighters. Mangal Pandey, Tantia Tope, Rani of Jhansi, Birsa Munda and a number of endless men and women were the pioneers of the freedom movement. बहुत सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन से इंडिया एक फ्री कंट्री बन पाई, जैसे कि मंगल पांडे, तांत्या तोप या फिर रानी ऑफ झांसी. The freedom fighters, with their true spirit and undaunted courage, had to undergo tortures, exploitations and hardships to earn us freedom. A few brave men of India were not ready to accept it. They stood against this exploitation. People tried their own ways. Some of them tried through peace and negotiation, while others tried through force. But no one could succeed. Then all of them joined hands and stood against the British government. मंगल पांडे, झांसी की रानी. बच्चों, अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो हमें मंगल पांडे एंड झांसी की रानी की पिक्चर गिवन है, जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे. इन फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत कुछ सहा हमारी फ्रीडम के लिए. पहले तो इन लोगों ने अपने अपने तरीके अपनाए, पर जब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो इन सब ने साथ में मिलके इंडिया को फ्री करने की कोशिश करी एंड साथ में काम करने से ये लोग सक्सेसफुल हुए. दादाबाई नौरोजी एंड बदरुद्दीन तयाबजी वर अमंग द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स. दादाबाई नौरोजी also wrote a book named Poverty and Un-British Rule in India, wherein he has mentioned how Britishers exploited Indians. तो बच्चों, दादाबाई नौरोजी ने एक बुक लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने मेंशन करा है कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कैसे एक्सप्लॉइट किया या तंग किया. विद हिज व्यूज एंड ओपिनियंस, many people were impressed and they developed themselves as leaders for the better government. Leaders started setting political associations. Leaders like Surendranath Banerjee and Badruddin Tayabji were the main contributors towards awareness of people. दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन तयाबजी. बच्चों, अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो हमें इन दोनों फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर गिवन है. ये लोग बहुत ही अच्छे लीडर्स थे जिन्होंने इंडिया को फ्री कराने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया. दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC in 1885 under the leadership of A.O. Hume. INC spread its network all over the country. People from various areas of the country joined the Congress. This marked the beginning of an organized political movement against the Britishers. A.O. Hume. तो बच्चों, सुरेंद्र नाथ एंड बदरुद्दीन जैसे लीडर्स ने मिलकर ये सोचा कि उन्हें पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनानी चाहिए. ऐसे ही फॉर्म हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि A.O. ह्यूम की लीडरशिप के अंडर थी. वहाँ पे सभी लीडर्स ने एकजुट होकर डिसाइड किया कि वो इंडिया के वेलफेयर एंड फ्रीडम के लिए काम करेंगे. INC लीडर्स कंटिन्यूड देयर फाइट एंड लेड सेवरल कंडीशंस, बट ब्रिटिशर्स डिड नॉट oblige them. So the Congress emerged as a strong and forceful party. बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल and Aurobindo Ghosh were some of its major leaders.
British government started opposing the freedom fighters. Foremost freedom fighter Bal Gangadhar Tilak said, "Swaraj is my birthright and I will have it." सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो बच्चों अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो हमें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की पिक्चर गिवन है। आईएनसी लीडर्स ने तय कर लिया था कि वो फ्रीडम पाकर ही रहेंगे। ब्रिटिशर्स उन्हें ऑब्लाइज कर रहे थे पर फिर भी वो अपने फैसले पे टिके हुए थे। कांग्रेस एमर्ज हुई एक स्ट्रॉन्ग एंड फोर्सफुल पार्टी बनके। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड औरबिंदो घोष उसके कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे। लाल बाल एंड पाल। He was sent to jail many a times for his extreme views and revolutionary ideas. W.C. Banerjee was first president of INC. तो बच्चों एक फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो हमें लाल बाल एंड पाल की साथ में एक पिक्चर दी हुई है। इन्हें बहुत बार जेल भेजा गया था इनके एक्सट्रीम व्यूज़ एंड रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ruthless act made people revolt. They soon started following the violent means to answer the British acts of suppression. These extremists were called less revolutionaries. Abhinav Bharat and Anushilan Samiti were the most important revolutionary organizations. Vinayak Damodar Savarkar was the founder of Abhinav Bharat. W.C. बैनर्जी। तो बच्चों ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूथलेस एक्ट से सब लोग परेशान हो गए थे और वो उन्हें सप्रेस करना चाहते थे। कुछ एक्सट्रीमिस्ट जिसे हम रेस रेवोल्यूशनरीज भी बोल सकते हैं, उन्होंने आकर रेस्क्यू किया। अभिनव भारत एंड अनुशीलन समिति दो इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस थीं। इन 1991 लाला हरदयाल केम आउट with his Gadar movement. He openly declared an armed attack on the British government. He carried his movement from America to free people of India. Madam Bhikaji Cama helped from Geneva. लाला हरदयाल। तो बच्चों अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो हमें लाला हरदयाल की पिक्चर गिवन है जिन्होंने गदर मूवमेंट स्टार्ट करी थी। उस मूवमेंट में उन्होंने ओपनली डिक्लेयर कर दिए थे आर्म्ड अटैक्स ऑन ब्रिटिशर्स, जिसमें भिकाजी कामा ने भी हेल्प करी थी। अ रेवोल्यूशनरी खुदीराम बोस थ्रू अ बॉम्ब इन अ कैरियज टू किल अ जज. He was imposed with severe punishment. He was hanged till death at the age of 15. In 1914, First World War broke out. Mohandas Karamchand Gandhi returned to India from South Africa. मैडम भिकाजी कामा, खुदीराम बोस। बच्चों अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो हमें मैडम भिकाजी कामा एंड खुदीराम बोस की पिक्चर गिवन है। एक रेवोल्यूशनरी खुदीराम बोस ने एक बार एक बॉम्ब जज पे फेंका था जिस वजह से उन्हें अरेस्ट कर दिया गया था एंड उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी एट द एज ऑफ 15। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। ही स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। पीपल वर आस्क्ड नॉट टू फॉलो द ब्रिटिश गवर्नमेंट, रिमेनिंग नॉन वायलेंट। गांधीजी's movement सत्याग्रह which meant force of truth was peaceful. The movement was going strongly, but it was interrupted by a violent incident that took place at Chauri Chaura village in United Province, now Uttar Pradesh. A crowd of people attacked a police station and set it on fire. As many as 22 policemen were burnt alive. Gandhiji was greatly shocked and he withdrew the movement immediately. तो बच्चों जो महात्मा गांधी थे उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स स्टार्ट करी थी
जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वो चाहते थे कि हम सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई तो करें पर एक नॉन वायलेंट वे में। उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट भी स्टार्ट करी थी जिसका मतलब था फोर्स ऑफ ट्रुथ। वो विश्वास रखते थे कि हमें बिना वायलेंस के फाइट करना चाहिए। पर एक बार चौरी चौरा विलेज में उनकी मूवमेंट इंटरप्ट हुई जब लोगों ने पुलिसमैन पे अटैक कर दिया। अराउंड 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया गया था। तभी महात्मा गांधी ने अपनी मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया था। टू सी द ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल इन 1928 द साइमन कमीशन वॉज फॉर्म्ड. Not a single Indian was member of the commission. This came as a shock to people. Lala Lajpat Rai led the demonstration against the Simon Commission at Lahore. He was lathi charged and he got grievous injuries. Later on, he succumbed to his injuries. चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। तो बच्चों अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो हमें चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की पिक्चर गिवन है जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। तो बच्चों साइमन कमीशन फॉर्म हुआ था 1928 में जिसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था एंड इस चीज़ ने लोगों को बहुत ज़्यादा शॉक किया। लाला लाजपत राय ने डेमोन्स्ट्रेट किया साइमन कमीशन के अगेंस्ट लाहौर में और उन पे लाठी चार्ज हुआ। उन्हें बहुत सारी इंजरीज हुई पर लेटर ऑन उन्होंने उनसे रिकवर कर लिया। अदर मेजर रेवोल्यूशनरीज वर राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, भगत सिंह, रोशन सिंह and many others. Udham Singh killed the British officer who was responsible for the death of Lala ji. सुखदेव, राजगुरु। बच्चों अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो हमें सुखदेव एंड राजगुरु की पिक्चर गिवन है। हमारे पास और भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज थे जैसे कि राजगुरु, भगत सिंह, रोशन सिंह, सुखदेव एंड चंद्रशेखर आज़ाद। उधम सिंह एक रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने उस ब्रिटिश ऑफिसर को मारा जो कि डेथ ऑफ लाला जी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। भगत सिंह थ्रू अ बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली हॉल फॉर विच अबाउट 30 यंग मैन वर अरेस्टेड। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग्ड टू डेथ। तो बच्चों भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल असेंबली हॉल पर जिसके लिए 30 लोगों को अरेस्ट किया गया था एंड उस वजह से भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। फैक्ट टू नो, महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड सेवरल टाइम्स फॉर स्टार्टिंग सत्याग्रह मूवमेंट। तो बच्चों महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करी थी उसके लिए उन्हें काफ़ी बार अरेस्ट किया गया था। In 1929, the INC held its session at Lahore. Here, Pandit Nehru pledged to have the Purna Swaraj, that is, complete independence. On 26 January 1930, Nehru ji unfurled the tricolour on the banks of River Ravi at Lahore as a mark of demand for independence. In memory of this day, Indian Constitution came into force on 26 January 1950. We celebrate this day as Republic Day every year. तिरंगा moving high. जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों 1929 में लाहौर में INC का एक सेशन हुआ जहाँ पे पंडित नेहरू ने प्लेज लिया पूर्ण स्वराज का, दैट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी 1930 को नेहरू जी ने ट्राई कलर का झंडा रिवर बैंक पे फैला दिया और उन्होंने ये बोला कि वो इंडिया को आज़ाद करके ही रहेंगे। इन मेमोरी ऑफ दिस डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काम करने लगा 26 जनवरी 1950 से। इस दिन को हम आज भी रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। इन 1930 गांधी जी started a movement called Civil Disobedience Movement in which people were asked to disobey British rulers. Gandhiji broke the unjust salt law by marching from the Sabarmati ashram in Ahmedabad to Dandi on the sea coast near Surat. This famous march was called Dandi March
और सॉल्ट सत्याग्रह। दांडी मार्च। तो बच्चों 1930 में गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट करी जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें उन्होंने लोगों को कहा था कि ब्रिटिश की किसी भी बात को ना माने। उसके बाद उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह या दांडी मार्च भी किया, जिसमें उन्होंने सॉल्ट रूल को ब्रेक किया। गांधी जी मेड द सॉल्ट एंड फॉर दिस ऑफेंस he along with several others was arrested. Many other people along with him were also arrested for breaking the law. In 1942, under the leadership of Gandhi ji, Congress passed a resolution Quit India. तो बच्चों जो उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक करा था उसमें और भी लोग शामिल थे, उन सभी को अरेस्ट किया गया था। उन्होंने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट करी। ब्रिटिशर्स वर आस्क्ड टू क्विट इंडिया। पीपल वर गिवन द स्लोगन डू और डाई। मैनी कांग्रेस लीडर्स लाइक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल and Mahatma Gandhi came to the front. Indian National Army INA was raised by Subhash Chandra Bose at Singapore in 1943. सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो हमें सुभाष चंद्र बोस की पिक्चर गिवन है। क्विट इंडिया मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो लोगों को एक स्लोगन दिया गया, डू और डाई, जिसका मतलब है करो या फिर मरो। उसके बाद बहुत सारे लीडर्स जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड महात्मा गांधी इंडिया के फ्रीडम के लिए सामने आए। इंडियन नेशनल आर्मी जो कि सुभाष चंद्र बोस ने रेस करी थी सिंगापुर में 1943 में, उन्होंने भी इसमें पूरा सपोर्ट दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945 एंड द जनरल इलेक्शंस took place in England. Labour Party came into power. After the World War, the newly appointed Prime Minister of England was in favour of giving freedom to India. He sent cabinet mission to recommend certain constitutional measures in India. तो बच्चों 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, जिसके बाद इंग्लैंड के जनरल इलेक्शंस हुए थे, जिसमें सभी लोग फेवर में थे इंडिया की फ्रीडम के लिए। ऑन अगस्त 15, 1947, इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड फ्री। ऑन द मिडनाइट ऑफ अगस्त 14, 1947, इंडियन नेशनल फ्लैग तिरंगा वॉज होइस्टेड ऑन रेड फोर्ट बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। तो बच्चों अगस्त 15, 1947 को इंडिया को फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेड फोर्ट पर तिरंगा लहराया था, जिससे कि फ्री इंडिया डिक्लेयर कर दी गई थी। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।